तो स्टूडेंट्स आज अपना टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन अ मीडियम ऑन द अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। इंटरफेरेंस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਕੋਹਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੋਹਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਲਾਈਟ ਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੀਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। At the points where resultant intensity of light is maximum, interference is said to be constructive। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਯੂਜੂਅਲੀ ਔਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ we obtain alternate bright and dark bands of light। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਟਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਡਾਰਕ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੈਂਡਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਫਰਿੰਜਿਸ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਸਟੇਨਡ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ। ਦ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ in which the position of maximum and minimum intensity of light remains fixed all along the screen is called sustained or permanent interference pattern। so sustained interference ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਂਡ ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, in which positions of maximum and minimum intensity of lights that is fixed all along the screen, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, sustained interference pattern। ਸੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ sustained interference ਦੀਆਂ, two sources should emit the light waves continuously। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਸੋਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਈਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ emit ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਸੇਮ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੋਵੇ, ਐਂਡ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਟੂ ਲਾਈਟ ਸੋਰਸਿਸ ਮਸਟ ਲਾਈ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਸੋਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣ। ਦ ਟੂ ਲਾਈਟ ਸੋਰਸਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਨੈਰੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਨੈਰੋ ਹੋਣ। ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਯੰਗਸ ਡਬਲ ਸਲਿਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। ਦ ਸੈਟਅਪ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਯੰਗ ਟੂ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਦ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਆਫ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਫਿਗਰ। ਸੋ ਯੰਗਸ ਨੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੇ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਨੈਰੋ ਸਲਿਟ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੂਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਲਿਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਲਿਟਸ ਨੇ A ਐਂਡ B ਵਿਚ ਆਰ ਵੈਰੀ ਨੈਰੋ। A ਐਂਡ B ਆਰ ਅਗੇਨ ਨੈਰੋ ਸਲਿਟਸ, ਐਂਡ ਇਸ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨ ਸਲਿਟ ਤੋਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਿਟਸ ਨੇ A ਐਂਡ B, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 0.5 mm। ਇਸ A ਐਂਡ B ਨੈਰੋ ਸਲਿਟਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 2 ਮੀਟਰ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਅਬਟੇਨ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਡਾਰਕ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਰਿੰਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਬਟੇਨ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਸਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਫ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰਿੰਜਿਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਡਾਰਕ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਈਟ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਰਿੰਜਿਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਰਕ ਫਰਿੰਜਿਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪੁਆਇੰਟ E 'ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਕਸਿਮਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਕਸਿਮਾ ਤੋਂ
पॉइंट डी एंड एफ तुसीं देख सकते हो, डी एंड एफ पॉइंट ते साडे कोल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है जिसनूं असीं रैड कलर दे नाल शो कीता है। सी एंड जी ते साडे कोल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। सो तुसीं डायग्राम दे विच देख रहे हो कि ब्लू कलर डॉट्स पॉइंट्स रिप्रजेंट कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड रैड कलर डॉट्स रिप्रजेंट कर रहे हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कदों होएगी जो क्रैस्ट के उपर क्रैस्ट एंड ट्रफ के उपर ट्रफ लाई करेगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उदों होएगी जो एक वेव की क्रैस्ट दूसरी वेव के ट्रफ उपर लाई करेगी। सो इस हुण तुसीं स्क्रीन ते देख रहे हो ये सारी ये एक्सप्लेनेशन पीछे जिहड़ी ये डायग्राम है इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन जिहड़ी है इस पेज उपर दिती गई है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेट टू लाइट वेव्स फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सिस साडे कोल दो कोहेरेंट सोर्सिस ने ते उन्हां तो लाइट इमिट हो रही है तो असीं उसनूं रिप्रजेंट कर रहे हैं इक्वेशन 1 एंड 2 दे नाल। सो y1 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी, y2 इक्वल टू b साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। दोवां दे विच फेस डिफरेंस कितना है फाई। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसीपल रिजल्टेंट डिसप्लेसमेंट वाई, हुण असीं सुपरपोजिशन प्रिंसीपल पढ़ के आए हैं उसमें इत्थे असीं यूज़ कर रहे हैं वाई इज इक्वल टू y1 प्लस y2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 असीं वैल्यू पुट की है y1 एंड y2 दी। सो y इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस फाई। नैक्सट स्टैप दे विच असीं फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखी है a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस b ब्रैकेट दे विच असीं हुण साइन ऑफ a प्लस b दा फॉर्मूला लगावांगे की हुंदा है साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। वो वाला फॉर्मूला असीं इत्थे अप्लाई करके एक्सपैंड कर लिया टर्म नूं साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। नैक्सट स्टैप दे विच असीं जिहड़ा ब्रैकेट दे बाहर b है उसनूं अंदर या टर्म्स दे नाल असीं मल्टीप्लाई किया a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस b कॉस ओमेगा टी साइन फाई। नैक्सट स्टैप दे विच असीं साइन ओमेगा टी कॉमन लिया। सो ब्रैकेट दे विच साडे कोल रह गया a प्लस b कॉस फाई प्लस b कॉस ओमेगा टी साइन फाई। नैक्सट असीं इक्वेशन 3 बनाई है सिंपली इस इक्वेशन को असीं रीअरेंज किया ब्रैकेट वाला पोर्शन अगे लिख लिया a प्लस b कॉस फाई प्लस डॉट साइन ओमेगा टी प्लस b साइन फाई कॉस ओमेगा टी। नैक्सट असीं a प्लस b कॉस फाई नूं r कॉस थीटा इक्वेशन 4 दे नाल पुट कर रहे हैं b साइन फाई इक्वल टू r साइन थीटा इसनूं असीं इक्वेशन 5 लै ली। तो ये दोवें 4 एंड 5 नूं असीं इक्वेशन 3 दे विच पुट कर लिया तो साडे कोल की बन गई इक्वेशन y इक्वल टू r कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस r साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। नैक्सट असीं जिहड़ा है r नूं कॉमन लिया दैन इक्वेशन 6 असीं बनाई है y इक्वल टू r साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। अगेन हुण तुसीं देख लो कि जिवें आपां उपर एक्सपेंशन लाई सी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई ते साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ किया सी हुण असीं उसनूं इत्थे रिवर्स दे विच यूज़ कर रहे हैं मतलब साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। ये किहड़ा फॉर्मूला बन गया साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। सो इत्थे जिहड़ा कैपिटल आर है ये की है इट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। सो वाई की है डिसप्लेसमेंट है रिजल्टेंट वेव दी, आर इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। नैक्सट स्टैप दे विच असीं जिहड़ियां इक्वेशनस 4 एंड 5 लईआं ने उन्हां नूं स्केयर एंड ऐड किया a प्लस b कॉस फाई होल स्केयर प्लस b साइन फाई होल स्केयर इक्वल टू a स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस r स्केयर साइन स्केयर थीटा। ये असीं सिंपली 4th एंड 5th इक्वेशन ये वाली 4 एंड 5 इक्वेशनस नूं स्केयर एंड ऐड किया। दैन a प्लस b कॉस फाई होल स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई करके असीं ब्रैकेट ओपन की a स्केयर प्लस b स्केयर कॉस फाई प्लस 2ab कॉस फाई सैकेंड ब्रैकेट सी b स्केयर साइन स्केयर फाई। दैन राइट हैंड साइड ते आर स्केयर कॉमन कट के कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा बना लिया। ये आइडेंटिटी कितनी होंगी है दिस इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। सो राइट हैंड साइड ते साडे कोल सिर्फ आर स्केयर रह गया। अगेन लैफ्ट हैंड साइड ते तुसीं देख लो कि तुहाडे कोल बी स्केयर कॉस स्केयर फाई भी है प्लस बी स्केयर साइन स्केयर फाई। ये दो टर्म्स ने इन्हां चों असीं बी स्केयर नूं कॉमन लिया
ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ sin square phi plus cos square phi। अगेन ਇਹ ਵਾਲੀ ਆइडेंटिटी ਕੀ ਹੋਏਗੀ 1। सो फाइनली ਸਾਡੇ ਕੋਲ इक्वेशन 7 ਬਣ ਗਈ r square equal to a square plus b square plus 2ab cos phi। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ पता है also intensity is directly proportional to square of amplitude of wave। ये सानू ऑलरेडी पता है। सो I1 is equal to ka square, I2 equal to k b square। ये चीज़ आपां पिछले आर्टिकल दे विच भी कीता है जिथे असीं कोहरेंट एंड इनकोहरेंट सोर्सिस वाला आर्टिकल कीता सी। सो IR इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव कितनी होएगी IR इक्वल टू के आर स्केयर। इत्थे आर स्केयर इक्वेशन 7 तो असीं जिहड़ी है वैल्यू पुट कीती है। साडे कोल इक्वेशन बन गई के ए स्केयर प्लस के बी स्केयर प्लस 2 cos phi। सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज IR इक्वल टू I1 क्योंकि सानू पता है कि ए स्केयर की वैल्यू कितनी है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi। ये साडे कोल आ गई इक्वेशन नंबर 8। हुण असीं की करना है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नूं कंडीशनस देखनियां ने। सो पहला असीं देखांगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वास्ते की कंडीशनस ने। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वास्ते इंटेंसिटी शुड बी मैक्सिमम, आई शुड बी मैक्सिमम। आई कदों मैक्सिमम होगा जो cos phi 1 होएगा। सो cos phi 1 मीनस phi इज इक्वल टू 0 2 pi 4 pi 6 pi एंड सो ऑन। जे असीं इसनूं जनरलाइज करते हैं phi इज इक्वल टू 2n पाई वेयर n इज़ अ इंटीजर एंड इस दी वैल्यू असीं लै रहे हैं 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। हुण तुसीं राइट साइड ते डायग्राम देख रहे हो कि साडे कोल एक सोर्स है मोनोक्रोमैटिक सोर्स है, 2 स्लिट्स ने एंड एक स्क्रीन है। तो जो 2 स्लिट्स तो जी वेव P पॉइंट ते जाके जिहड़ियां ने वो इंटरफेयर कर रही ने। इफ x इज़ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द 2 वेव्स रीचिंग पॉइंट P। हुण जिहड़ियां स्लिट्स ने 2 जदों इन्हां तो जिहड़ियां वेव्स P पॉइंट तक जा रही ने मान लो इन्हां दे विच पाथ डिफरेंस कितना x। तो x नूं असीं किस तरह रिप्रजेंट कर रहे हैं x इक्वल टू लैमडा बाय 2 पाई आउटसाइड फाई। हुणे फाई की वैल्यू सानूं पता है 2n पाई है, तो फाई की वैल्यू नूं असीं 2n पाई पुट कीता है। सो साडे कोल x कितना आ जाएगा x इक्वल टू n लैमडा। सो साडे कोल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वास्ते की कंक्लूजन आया फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस इज एन इंटैग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इवन इंटैग्रल मल्टीपल ऑफ पाई एंड path difference is an integral multiple of lambda। for constructive interference path difference नहीं है by mistake जिहड़ा है इत्थे path difference लिखा गया। सो फर्स्ट लाइन दे विच for constructive interference it is phase difference। तुसीं इत्थे ध्यान नाल देख लो कि इत्थे आपां फाई लै रहे हैं, फाई की सी फेस डिफरेंस सी, फेस डिफरेंस फाई इक्वल टू 2n पाई। सो इत्थे आपां पहला जिहड़ा है फेस डिफरेंस की गल कर रहे हैं। बाय मिस्टेक आई हैव रिटन हेयर पाथ डिफरेंस, सो प्लीज़ करैक्ट इट। इट इज़ फेस डिफरेंस इज़ एन ईवन इंटैग्रल मल्टीपल ऑफ पाई एंड तुसीं जिहड़ी इक्वेशन उपर देख रहे हो ये हैगी पाथ डिफरेंस की x इक्वल टू n लैमडा। सो पाथ डिफरेंस इज़ एन इंटैग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। फेस डिफरेंस ईवन इंटैग्रल है पाई दा एंड पाथ डिफरेंस इंटैग्रल मल्टीपल है लैमडा दा, राइट। नैक्सट इज़ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हुण डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वास्ते आई की होना चाहिए इट शुड बी मिनीमम। मिनीमम कदों होएगा जो cos phi -1 है। सो फाई कदों फाई की वैल्यूज़ की होनी है पाई 3 पाई 5 पाई एंड सो ऑन। जे आप इसमें जर्नलाइज करते हैं फॉर्मूला की बनेगा 2n+1 आउटसाइड फाई, n अगेन सेम है इंटीजर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। हुण पाथ डिफरेंस नूं असीं किवें रिप्रजेंट कर रहे हैं x इक्वल टू लैमडा बाय 2 पाई आउटसाइड फाई, आही चीज़ सी x इक्वल टू लैमडा बाय 2 पाई फाई। तो हुण इत्थे फाई की वैल्यू कितनी है 2n+1 पाई, ये वैल्यू असीं इत्थे पुट कीती है, रीअरेंज किया है। साडे कोल जिहड़ी फाइनली इक्वेशन बन रही है x इक्वल टू n लैमडा प्लस लैमडा बाय 2 एलसीएम लैके जब असीं कह लो कि लैमडा बाय 2 नूं असीं जिहड़ा कॉमन लिया दोवां टर्म्स दे विच
ਸੋ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2n+1 ਲੈਮਡਾ ਬਾਏ 2। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ऑड इंटैग्रल मल्टीपल ऑफ लैमडा बाय 2 ਤੇ फेस डिफरेंस इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ 5। फेस डिफरेंस मतलब तुसीं 5 वाली इक्वेशन ਨੂੰ देखो, 5 वाली इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ऑड मल्टीपल है पाई ਦਾ ਤੇ x वाली इक्वेशन ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ पाथ डिफरेंस ਕੀ ਹੈ ऑड इंटैग्रल मल्टीपल ऑफ लैमडा बाय 2।